Okay, so we started off with a new topic. हमने कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था, that is surface tension. And हमें surface tension समझना है on the basis of molecular theory. So we will again start with basics of surface tension. तो सबसे पहले surface tension ये क्या है? This is what you should know. And as you already know, क्योंकि कल के सेशन में देखा था, surface tension is the property of liquid surface at rest in which the liquid surface behaves like a stretched elastic membrane. इस property को हमने बोला था surface tension. So the property of liquid surface, remember this is strictly a property of liquid surface. तो ये surface word चाहिए, इसके लिए इसको surface tension बोलते हैं. The property of liquid surface in which या due to which, ऐसा भी बोल सकते हो, due to which the free surface of liquid behaves like a stretched elastic membrane, due to which the free surface, and this is important, the surface जो हम बात कर रहे हैं वो free होना चाहिए, free to atmosphere, open to atmosphere, due to which free surface of liquid behaves like a stretched elastic membrane, इसको हम बोलते हैं is known as surface tension. और मैंने आपको कल कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे. एग्जांपल नंबर 1, if you know, and of course you must know, liquid drop या soap bubble, इसका शेप क्या होता है? Spherical. So the spherical shape of a drop or bubble is due to property of surface tension. और ये spherical क्यों बनेगा वो भी हम देखेंगे, maybe today or in next lecture. So you should know the shape of a liquid drop or a soap bubble is spherical, or a spherical shape is due to surface tension. And exactly why it becomes spherical, ये हम, as I told you, we will see very soon. आज या कल के lecture में cover होगा वो. Number two, I gave you one more example of water spider. So water spider, some insects like water spider can walk on the surface of water due to surface tension. So water spider can walk on the surface of water. क्यों ऐसा? क्योंकि surface of water पे क्या बना? एक stretched elastic membrane. So water spider can walk on the surface of water due to surface tension. So due to surface tension, ST. So in short, I will be writing it ST. तो अगर आपको याद होगा, हमने last session में to explain surface tension we have taken the help of molecular theory. तो molecular theory क्या है? First of all, when you say molecular theory, तो याद रखना हमेशा वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात होगी. तो पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि विच आर द टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. तो इफ यू रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स, कोहेसिव एंड एडहेसिव. फिर हमको देखना पड़ेगा कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रेंज कितना है. रेंज मतलब अप टू विच डिस्टेंस दे आर इफेक्टिव. उसको हमने बोला था रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर मॉलिक्यूलर फोर्स. फिर हमने देखा था व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ये चारों बेसिक आइडिया क्लियर होंगे, देन वी कैन गो एंड एक्सप्लेन व्हाट इज सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करना है तो ये चारों के चारों बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. तो लेट अस स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. मॉलिक्यूलर थ्योरी, एंड नाम में ये थ्योरी, which means it is completely theory. So you have to keep your eyes open.
molecular theory of surface tension. तो सबसे पहले टू एक्सप्लेन सरफेस टेंशन क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं. तो यू मस्ट नो व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो एज यू नो, मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट. These molecules of matter, they attract each other, right, irrespective of कि वो सेम टाइप के है, मतलब वाटर वाटर, या फिर वो अलग टाइप के है जैसे वाटर एंड ग्लास. देयर इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पे कभी रिपल्सिव फोर्स होता ही नहीं है. तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? दे आर attractive forces between molecules of matter. So matter, as we know, matter is made up of large number of molecules, is made up of large number of molecules. Then what does these molecules do? क्या करते हैं molecules? They attract each other. So these molecules attract each other. So each molecule will attract other molecule, attract each other, right. ये जो force of attraction है, this force of attraction किसमें है? Between the molecules. इसको क्या बोला है हमने? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. Between the molecules is known as intermolecular force. And then we saw there are two types of intermolecular forces, cohesive and adhesive. Very good. There are two types of intermolecular forces. तो एक एक करके. तो पहला था cohesive force. What do you mean by cohesive force? What is cohesive force? Force of attraction between molecules of same substance. तो पहला है cohesive force. The force of attraction between two molecules of the same type. जैसे water of the same type, mercury. And interestingly you will see mercury में cohesive force ही सबसे ज्यादा होता है, adhesive is almost not there. लेकिन water में दोनों होते हैं, cohesive भी adhesive भी. So the force of attraction between two molecules of the same type is known as cohesive force. तो अभी पता लग गया cohesive force क्या है, तो उसका एक example भी बता दो. Now what is example of cohesive force? Force of attraction between two water molecules, between two H2O water molecules. Then the next था, which was the next type of force? Adhesive force. Extremely simple topic है. The only thing is this is completely theory, so it's not difficult. क्या बोलोगे हम यहाँ पे? The force of attraction between two molecules of different type. Different same type मतलब same substance, तो ठीक है. तो you can say same type मतलब same substance, different type मतलब different substance, एक ही बात है. तो force of attraction between two molecules of different substance. The force of attraction और same substance हो या different substance हो, force is always attractive. The force of attraction between two molecules of
different substance is known as adhesive force. Is known as adhesive force. और ये जो adhesive force है इसका example, best example, force of attraction between water and glass molecules. ग्लास हम जब बोलते हैं ना तो यू डोंट टेक इट अदरवाइज, ग्लास मतलब मैं घर में स्टील का ग्लास यूज करते हैं वो भी हो सकता है वैसे, लेकिन जो ग्लास हम बोलते हैं यहाँ पे दैट इज सिलिकेट है ना। तो हम जो ग्लास दैट इज ब्रिटल विच कैन ब्रेक, ट्रांसपेरेंट जिससे ये लेंस बना है उस ग्लास की बात कर रहा हूँ जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, अदरवाइज बोलोगे स्टील, स्टील इज ऑल्सो आई मीन स्टील इज ऑल्सो ग्लास। ग्लास हम एक शेप को एसोसिएट करते हैं वहां पे, यहाँ पे शेप को नहीं, यहाँ पे मटेरियल को एसोसिएट कर रहे हैं। ओके, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड ग्लास। Example, force of attraction between water molecule and glass, right? Glass means silicate. Okay, तो पता होना चाहिए, you being student of science, तो glass किस मटेरियल का होता है। हाँ, लेकिन उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? SiO2, right, with some impurities. Good. Then इसके बाद हमने जो तीसरा डेफिनेशन लिया था, देखो यू हैव एक्सप्लेन बेसिक कि कोहेसिव फोर्स क्या है, एडहेसिव फोर्स क्या है। अगला क्वेश्चन डेफिनेटली ये आता है कि ये फोर्स कितने डिस्टेंस तक वैलिड है, उसको क्या बोला था हमने, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स denoted by R. So the maximum distance between the two molecules up to which molecular forces are effective. मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही फोर्स रहेगा, उससे ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा दिया तो देयर विल बी नो फोर्स बिटवीन दीस टू मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको बोलते हो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। और बहुत सिंपल है, डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स अप टू व्हिच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव इज नोन एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। सो द मैक्सिमम distance up to which क्या होता है, the maximum distance up to which the intermolecular up to which किस में था ये, between two molecules, so maximum distance between two molecules up to which the maximum distance between, थोड़ा स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, between two molecules up to which intermolecular forces are effective is known as, क्या बोलते हैं इसको, is known as range of molecular force। तो रेंज वर्ड का ही मतलब ये होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। रेंज इज रेंज, प्रोजेक्टाइल में भी देखा था आपने, रेंज मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, तो रेंज मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। गुड, देन इफ यू रिमेंबर हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि ये जो रेंज है इट इज वेरी शॉर्ट, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर, मतलब फ्यू नैनोमीटर। सो रेंज ऑफ intermolecular forces is nearly equal to 10⁻⁹ meter, मतलब around 1 nanometer 2 nanometer up to that range
तो इसका मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? 10⁻⁹ मीटर मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस हुआ कि नहीं? इट इज वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। इसका मतलब दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। क्योंकि अगर आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें 4 टाइप के फोर्सेस देखे थे आपने। 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसमें से 2 जो फोर्सेस थे, कौन से 2 फोर्सेस थे? एक था ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों है लॉन्ग रेंज फोर्सेस। इनका रेंज है इंफिनिटी। तो दे एक्ट बिटवीन टू पार्टिकल्स इवन एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस लाइक इंफिनिटी। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था, इट वाज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। उसका रेंज था diameter of the nucleus 10⁻⁻15 मीटर। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि कितना रेंज है। सो thus intermolecular forces are short range forces. Thus intermolecular forces are short range forces. और वैसे इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लॉन्ग रेंज फोर्सेस जो होते हैं वो दे आर इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या फिर ग्रेविटेशन फोर्स। और जब आप इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक, इंटर न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर, तो व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस? 10⁻⁻15। व्हाट इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल? फ्यू माइक्रोमीटर, 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, मतलब मीटर के आसपास आता है वो। तो 10 पावर माइनस में कुछ भी आया तो वो क्या होगा? शॉर्ट रेंज होगा। तो ये भी क्या है? शॉर्ट रेंज है। गुड। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो आपको याद होगा कि हमने नेक्स्ट डेफिनेशन जो किया था दैट वाज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कुछ रह गया तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल लेट अस गो विद द फ्लो। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इफ यू रिमेंबर, मैं अगर एक मॉलिक्यूल लेता हूं, इस मॉलिक्यूल का जो रेंज है वो हर एक डायरेक्शन में वैलिड है। वो इस डायरेक्शन में भी होगा, वो अपोजिट में भी होगा, वो ऊपर भी होगा, वो यहाँ भी होगा, वो साइड वाइज भी होगा, एंड इट इज गोइंग टू बी एवरीवेयर। ये बोर्ड के बाहर भी आएगा, बोर्ड के अंदर भी जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर हम मॉलिक्यूल को सेंटर पे रखते हैं, सो विथ मॉलिक्यूल एट द सेंटर, इफ वी ड्रॉ अ स्फीयर with radius equal to range of molecular force, so what we will get is called as sphere of influence. तो हमने क्या किया? हमने स्फीयर ड्रॉ किया। उसका सेंटर पे कौन है? मॉलिक्यूल है। उसका रेडियस कितना है? इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। सच अ स्फीयर इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कैन यू कीप इट इनसाइड प्लीज? तो a imaginary sphere, an imaginary sphere drawn with molecule at the center and radius equal to range of molecular force, such a sphere is called as sphere of influence. So an imaginary sphere drawn with molecule at the center, and radius equal to range of molecular force, is known as sphere of influence. अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सिर्फ डिफाइन करके नहीं चलेगा, यू शुड आल्सो टेल, बताना चाहिए कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली इफ यू रिमेंबर, इमेजिन हमारे पास ये एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के सेंटर पे एक मॉलिक्यूल है, राइट? तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस किसका है? जो मॉलिक्यूल सेंटर पे है। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई और मॉलिक्यूल आता है तो वो मॉलिक्यूल
सेंट्रल मॉलिक्यूल पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब एनी मॉलिक्यूल विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस will attract the molecule at the center and vice versa मतलब the same molecule will also experience attractive force due to molecule at the center. अगर कोई molecule इसके बाहर है तो which means this molecule will neither exert force nor experience force, राइट? तो ये याद रखना, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई भी मॉलिक्यूल आया वो फोर्स एक्सर्ट भी करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस भी करेगा, सिंपल. एनी मॉलिक्यूल इनसाइड दिस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, inside this sphere of influence will exert force of attraction, will exert force of attraction किस पे? on the molecule at the center, on the molecule at the center. Also it will experience an attractive force due to molecule at the center, और याद रखना फोर्स कभी भी कपल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. यू कैन नॉट हैव अ सिंगल फोर्स. एक्शन रिएक्शन, अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो एक्शन है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी पहले को अट्रैक्ट करेगा, वो रिएक्शन है. यू सिटिंग ऑन बेंच, योर वेट इज एक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ द बेंच ऑन यू. तो फोर्सेस कभी भी सिंगुलर नहीं होते, राइट? इसका मतलब अगर ग्रेविटेशन के बारे में सोचोगे तो यू गो ऑन 100th फ्लोर एंड ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर, हमको दिखता है ऐसा कि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, अर्थ इज अट्रैक्टिंग दैट ऑब्जेक्ट. उल्टा भी है, द ऑब्जेक्ट इज आल्सो अट्रैक्टिंग अर्थ, बट अर्थ का मास इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स इज निग्लिजिबल, राइट? गुड. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. देन यहां तक अगर हो गया तो नाउ यू नो एवरी बेसिक थिंग टू स्टार्ट विथ व्हाट इज सरफेस टेंशन. तो जो बेसिक चाहिए था वो सब हो गया. अब सिर्फ एक डेफिनेशन रह गया जिसको हम बोलते हैं सरफेस फिल्म. तो सरफेस फिल्म में सरफेस टेंशन इसी टॉपिक में मेंशन कर दूंगा. तो सरफेस टेंशन, तो इफ यू रिमेंबर, हम पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो सरफेस टेंशन मतलब ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन. और अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हमको पहले लेना पड़ेगा एक लिक्विड का सरफेस रखना पड़ेगा फ्री, और देन वी हैव टू कंसीडर 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. तो ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. तो यू हैव व्हाट यू हैव इज अ कंटेनर, और कंटेनर में हमने लिया है एक लिक्विड. So you have a liquid here. सबसे पहला काम, as you know, surface tension ये surface property है. तो surface property है तो सबसे पहले हम define करेंगे surface film. तो अगर आपको याद होगा surface film मतलब क्या, हमने एक layer लिया था. वो layer कहाँ लिया था? top surface पे, free surface of liquid पे. और ये जो layer था, इस layer का thickness था equal to range. मतलब ये जो थिकनेस है दिस इज इक्वल टू आर, दिस इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. इसको कुछ नाम दे देते हैं. लेट अस कॉल दिस एज एक्स वाई. इसके अंदर का जो पैरेलल लेयर है इसको बोलते हैं एक्स डैश वाई डैश. गुड. नेम डजंट मैटर, जो बोलना वो बोल सकते हो, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि थिकनेस इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. तो ये जो लेयर बना इसको बोलते हैं फिल्म, सरफेस फिल्म. तो मैंने आपको बताया था कि जब सरफेस टेंशन आप एक्सप्लेन करोगे तो सबसे पहले हमको सरफेस फिल्म डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ मॉलिक्यूल्स
सरफेस फिल्म में कंसिडर करने वाले हैं, बिकॉज दैट इज द आइडिया कि जो सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल्स है उन पे एक नेट फोर्स है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो देखेंगे हम लोग, वी विल सी दैट। लेकिन पहले लेट अस डिफाइन व्हाट इज सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म मतलब क्या है ना, वाज वेरी बेसिक डेफिनेशन। ये सरफेस फिल्म क्या है, ये लेयर है, कहाँ पे है, एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इसका थिकनेस कितना है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। सो द लेयर एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, द लेयर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड बोल सकते हो, या तो एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, द लेयर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड whose thickness is equal to range of molecular force is known as surface film, राइट। तो बहुत बहुत सिंपल है। द लेयर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑफ कोर्स फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, whose thickness is equal to range of molecular force is known as surface film। अब सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिए थे 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल था A which was well inside, वो था well inside, right? Then if you remember the concept, the idea is ये जो वेल इनसाइड मॉलिक्यूल है ए, इस केस में इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सारे के सारे सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, मतलब ऑल ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर सेम लिक्विड मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इसका मतलब जितना फोर्स, कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स, जितना कोहेसिव फोर्स राइट साइड में है उतना ही कोहेसिव फोर्स लेफ्ट साइड में है, मतलब देयर इज कैंसलेशन। जितना कोहेसिव फोर्स ऊपर है उतना ही कोहेसिव फोर्स नीचे है, मतलब अगेन देयर इज कैंसलेशन, राइट। जितना कोहेसिव फोर्स साइड वाइज है एक साइड उतना ही दूसरे साइड। ये जो मॉलिक्यूल था ए, इस ए मॉलिक्यूल पे कौन से फोर्सेस है, ओनली कोहेसिव, बट ऑल दीज कोहेसिव फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस, मतलब इस पे नेट फोर्स कितना, 0। तो ये पहला मॉलिक्यूल। तो वी विल आल्सो गो ऑन एक्सप्लेनिंग, एक एक करके एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, तो इट इज बेटर थिंग टू डू, राइट। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सरफेस फिल्म तक डिफाइन किया। अब क्या करेंगे, अब हम एक कंटेनर ले लेंगे जिसमें एक लिक्विड है, एंड देन वी विल कंसीडर 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सो कंसीडर अ लिक्विड, लिक्विड हम ले लेंगे वाटर। कंसीडर अ लिक्विड मतलब वाटर in a container as shown in figure। फिर हमने 3 मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए थे, कंसीडर 3 मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से 3 मॉलिक्यूल्स, ए बी एंड सी। 3 मॉलिक्यूल्स ए, बी एंड सी में बताऊंगा, बी एंड सी which are ये ए मॉलिक्यूल कहाँ है, डीप इनसाइड, राइट। तो मैं काम करता हूँ ए बी एंड सी। ए मॉलिक्यूल इज डीप इनसाइड, तो जो ए मॉलिक्यूल है इट इज डीप इनसाइड। ए मॉलिक्यूल is deep inside the liquid, डीप इनसाइड द लिक्विड, क्योंकि ये डीप इनसाइड होगा तब जाके इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। फिर हमने लिया था बी मॉलिक्यूल। ये जो बी मॉलिक्यूल है इट इज विद इन द सरफेस फिल्म, सो इट इज विद इन द सरफेस फिल्म। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का छोटा सा पार्ट, अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस किसका, बी का, इट इज इन एयर, मेजॉरिटी इज इनसाइड वाटर। और एक तीसरा लिया था हमने मॉलिक्यूल राइट एट द सरफेस। तो इस केस में क्या होता है, हाफ पार्ट इज इनसाइड वाटर एंड हाफ पार्ट इज इन एयर।
तो ये पहले जो 3 मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं वो बताने पड़ेंगे, वो 3 मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ थे। तो कंसिडर 3 मॉलिक्यूल्स A, B and C. A molecule is deep inside the liquid such that चलो ठीक है, इसको बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। B मॉलिक्यूल कहाँ है? B molecule is within the surface film. Is within the surface film. C molecule is at the free surface of water. Is at the free surface of water. अब एक एक करके one by one each molecule you have to explain. तो आप बोलोगे as seen from the figure, the sphere of influence of A, complete sphere of influence of A is inside water. इसका मतलब sphere of influence में कौन है? सिर्फ water molecules है. So sphere of influence of A contains only water molecules, right? और ये water molecule हर एक direction में है. Thus molecule A experiences same cohesive force in all direction and hence the resultant force is 0. Okay, so as seen from the figure, the sphere of influence, right? better to say आप इसको डायरेक्टली ऐसा बोलो, as seen from figure, sphere of influence of molecule A contains only water molecules. Thus molecule A experiences same cohesive force. Adhesive तो यहाँ है नहीं, तो same cohesive force in all directions. Good. इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो गया? 0. Thus resultant force acting on molecule A is 0. Thus कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स. Thus resultant कोहेसिव फोर्स. ये बार बार मैं कोहेसिव बोल रहा हूँ क्योंकि सरफेस एनर्जी जब डिफाइन करेंगे तो ये वर्ड इज रियली इंपॉर्टेंट. तो याद रखना, सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लग रहा है? किस पे है? सबसे ज्यादा ए पे है, क्योंकि ए पे हर एक डायरेक्शन से कोहेसिव फोर्स है. सबसे ज्यादा फोर्स है ए पे. हाँ, बी और सी पे नेट डाउनवर्ड फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है डाउनवर्ड, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे है? ए पे. दिस वर्ड इज रियली इंपॉर्टेंट. और रिजल्टेंट कौन सा? कोहेसिव फोर्स, राइट? तो thus resultant cohesive force acting on A is 0. There is no net force, right? Then molecule B. So what do you see? A small part of molecule B, a small part of sphere of influence of molecule B, sphere of influence of molecule B कहाँ पे है? एयर में. A very small part of sphere of influence of molecule B is in air. और remaining कहाँ गया? वाटर में. तो remaining part is in water, is inside water. Then क्योंकि छोटा सा पार्ट एयर में है तो यहाँ पे इस छोटे से पार्ट में एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन एयर का डेंसिटी होता है कम. इसका मतलब एडहेसिव फोर्स है कम, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल. तो सिंस डेंसिटी ऑफ एयर is
very less compared to water, वो तो कंपेरिजन करेंगे ही, लेकिन सिंस डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लेस, व्हाट यू कैन से इज कौन सा फोर्स कम होगा, एडहेसिव. सो सिंस डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लेस, hence there is a very weak adhesive force. तो ऊपर के डायरेक्शन में जो एडहेसिव फोर्स है, इट इज वेरी वीक. देयर इज फोर्स बट वेरी वीक. तो वेरी वीक मतलब neglected. Okay, can be neglected, right? Then इसके बाद क्या हो रहा है मॉलिक्यूल बी के साथ? रिमेनिंग पार्ट में कौन था? वाटर मॉलिक्यूल. वो कौन सा फोर्स लगा रहा है? कोहेसिव. उसका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड. मॉलिक्यूल बी experiences net downward strong. ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है. नेट डाउनवर्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स. स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स. करेक्ट. यहाँ तक सफिशिएंट है. वेल ज्यादा बाकी का सब नोट्स में है, तो नोट्स का लैंग्वेज और यहाँ का लैंग्वेज थोड़ा यहाँ वहाँ होगा. डजंट मैटर रियली, फिजिक्स डजंट चेंज. आपको लिखना कैसे है उस पर डिपेंड नहीं करता है. कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. ये हो गया बी का एक्सप्लेनेशन खत्म. सी का केस क्या है? सी इजी है. हाफ एयर में और हाफ वाटर में. सो हाफ पार्ट of sphere of influence of C is in air while the remaining half is in water. So half part of sphere of influence of C is in air while the remaining half is in water. What is same explanation? So because air density is very small, so adhesive force is negligible, very weak, or cohesive force is very strong, or net cohesive force is in downward direction. Okay, so here the adhesive force acting on C is very weak, while, अब ज्यादा डिटेल में मैं लिखूंगा नहीं, while cohesive force is very strong. Thus क्या है? Thus there is a net upward नहीं, downward. There is a net downward cohesive force acting on molecule C. यहां तक अगर क्लियर है, यहां तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, then now it is a time to explain कि why the surface behaves as stretched elastic membrane. देखो अब होगा क्या, ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल ये हो रहा है कि सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, बी और सी तो एग्जांपल लिया, कोई और होगा यहाँ पे, डी होगा. डी का केस भी वैसा ही है, राइट? मैक्सिमम पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन एयर, स्मॉल पार्ट इज इन वाटर. तो नेट फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड. तो कोई और मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पे ले लो ई, इसका भी वही केस है. मतलब ओवरऑल सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब पे कौन सा फोर्स लगेगा? नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स. क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड है, तो जहां पे नेट फोर्स होता है मोशन उस डायरेक्शन में होता है, तो मॉलिक्यूल्स का मोशन कहाँ होगा? डाउनवर्ड. इससे क्या होगा? मिनिमाइजेशन किसका? मॉलिक्यूल्स का. So this reduces the number of molecules in the surface film. Clear? Because there are less number of molecules,
कहाँ? in the surface film. Hence, the surface of any fluid, any liquid acts as stretched elastic membrane, and this property is known as surface tension. तो इसको अभी एक्सप्लेन करो पॉइंट बाय पॉइंट. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एक्सट्रीमली सिंपल. तो क्या बोलोगे? आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि सरफेस फिल्म में कोई भी मॉलिक्यूल हो तो ईच मॉलिक्यूल या एनी मॉलिक्यूल ऐसा भी बोल सकते हो, एनी मॉलिक्यूल in the surface film experiences net downward cohesive force. Thus, molecules in the surface film are pulled down. मतलब are pulled inside the liquid, मतलब inside the water, right? इससे क्या होगा? This minimizes, मतलब this reduces the number of molecules in the surface film. And hence क्या होगा? Hence the surface of any liquid behaves like stretched elastic membrane. अब आप बोलोगे कि स्ट्रेचिंग कहां से आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए अगर, तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स दे पकड़ के रखते हैं टाइटली. अब तू मत नीचे जा, तू गया तो मुझे भी जाना पड़ेगा, एक गया तो दूसरा भी गया. So that is why they hold each other very strongly, इसलिए वो stretch दिखता है हमको, right? This property is known as surface tension. This property of surface of any liquid is known as surface tension. So finally, we now know exactly what is surface tension. ये है overall theoretical point of view. नाम में ही था, मैंने बताया था, this is molecular theory, which means you have to explain purely on basis of theoretical model. अब हमको mathematical equation भी चाहिए, तो we want to know कि how can we find out the value. क्योंकि क्या होगा, एक लिक्विड ले लिया वाटर, दूसरा लिक्विड ले लिया उसमें मिक्स कर दिया शुगर सिरप बन गया, तीसरा लिक्विड ले लिया उसमें मैंने मिक्स कर दिया सोप सॉल्यूशन, चौथा लिक्विड ले लिया उसमें डाल दिया सॉल्ट, राइट? तो 4-5 टाइप के लिक्विड्स है, तो पता करना है कि सरफेस टेंशन किसका ज्यादा है. अब देख के तो बता नहीं सकते ना, यू कैन नॉट गो एंड टेक माइक्रोस्कोप, ओ आई सी अ थिक फिल्म हियर, राइट? तो वैसा नहीं है, तो यू नीड टू हैव एन इक्वेशन. तो अब मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, राइट? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्टिंग है. तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज सरफेस टेंशन मैथमेटिकली, फिर हम देखेंगे सरफेस एनर्जी क्या है. तो पहले सरफेस टेंशन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. रिमेंबर हमारे पास एक कंटेनर था, कंटेनर में वाटर था, वाटर की सरफेस पे है सरफेस टेंशन. तो ऐसा है, कंटेनर में वाटर है, मेरे पास पानी का ग्लास है, मैं ग्लास के ऊपर से देख रहा हूँ, यू लुकिंग फॉर द टॉप, व्हाट डू यू सी? सर्कल, क्योंकि ग्लास का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कल. तो जो टॉप व्यू से देखोगे आप, व्हेन सीन फ्रॉम टॉप व्यू यू सी अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. तो रिमेंबर, मैं यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज टॉप व्यू, मतलब आप
उस लिक्विड को जो एक ग्लास में था या एक कंटेनर में था जिसका क्रॉस सेक्शन था सर्कुलर, इसको आप ऊपर से देख रहे हो तो यू सी दिस टॉप सरफेस, राइट। हमें डिफाइन करना है सरफेस टेंशन। रिमेंबर टेंशन इज अ फोर्स, सरफेस टेंशन इज नॉट अ फोर्स। वो टेंशन इन द स्ट्रिंग वो होता है फोर्स, उसके डायमेंशन होते हैं m1 l1 t-2 मेजर्ड इन न्यूटन। ये सरफेस टेंशन है, ये फोर्स नहीं है, फोर्स जैसा है लेकिन फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ इट्स डेफिनेशन। अब इमेजिन ये क्या है, ये फ्री सरफेस है, किसका? वाटर का। हमने इस फ्री सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ले लिया, इमेजिन अ लाइन समथिंग, आप इसको पी क्यू बोलो, आप इसको ए बी बोलो, आई डोंट केयर, सम लाइन पी क्यू, राइट, ऑफ लेंथ एल। इसका लेंथ कितना है? L। अब ये जो हमारे पास पी क्यू लाइन है जिसका लेंथ एल है, होगा क्या, ये सरफेस है वाटर का, मतलब हर एक पॉइंट पे क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। तो इस इमेजिनरी लाइन पे भी हर एक जगह पे क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल पे फोर्स कौन कौन से डायरेक्शन में है? नीचे है, नीचे है ना, कोहेसिव फोर्स, राइट। आजू बाजू है, क्योंकि इसके आजू और बाजू, इसके आजू और इसके बाजू कौन है? तो कौन सा फोर्स है? कोहेसिव। इसके ऊपर कौन है? एयर, लेकिन डेंसिटी होता है कम, वो फोर्स हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। विच मीन्स if you see there are in total 3 direction in which forces are acting, inside and sideways। तो सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाने के लिए फिलहाल डाउनवर्ड फोर्स भूल जाओ, हम सिर्फ लेंगे साइड वाइज फोर्स। इस साइड वाइज फोर्स को बुक में बोलते हैं स्ट्रेचिंग फोर्स। स्ट्रेचिंग मैंने अभी बताया ना, सरफेस पे मॉलिक्यूल हो गए कम, कम हो गए तो एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखा है तो स्ट्रेचिंग फोर्स, राइट। या तो इसको टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हो, क्योंकि जब भी फोर्स सरफेस को टच करके जाता है उसको क्या बोलते हो? टेंजेंशियल। फिजिक्स में, साइंस में उसको और एक नाम है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब इट इज जस्ट टचिंग। तो यहाँ पे इन सब मॉलिक्यूल्स पे ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेचिंग और टेंजेंशियल फोर्स, राइट। जो डाउनवर्ड फोर्स था, डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स था, इसको हमने फिलहाल कंसिडर नहीं किया है और करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमको मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाना है। तो इट इज इजियर कि हम सिर्फ टेंजेंशियल फोर्सेस कंसिडर कर ले। गुड। इमेजिन, इमेजिन अब मैं यहाँ पे सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, लेकिन इस लाइन पे कंटिन्यूअसली मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट। तो जो टोटल फोर्स है किस पे? पूरी लाइन पे, पूरी लाइन पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, हर एक मॉलिक्यूल पे टेंजेंशियल फोर्स है। टोटल फोर्स कितना हो गया? F। तो दिस टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन, डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन, राइट। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स एट इमेजिनरी लाइन PQ पर यूनिट लेंथ। क्योंकि पर यूनिट लेंथ मतलब आपने क्या किया? टोटल फोर्स फाइंड किया, उसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आया इसको आप बोलते हो सरफेस टेंशन। तो ये आ गया डायमेंशनली न्यूटन पर, मतलब यूनिट वाइज न्यूटन पर मीटर। डायमेंशनली इट इज m1 l1 t-2 अपॉन l1 कैंसिल, तो m1 t-2। गुड। तो रिमेंबर हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए था, तो हमने इंटेंशनली क्या किया, हमने बोला कि प्रॉब्लम क्या है कि हमने डाउनवर्ड फोर्स क्यों नहीं कंसीडर किया? यू कैनॉट मेजर, यू कैनॉट गो इनसाइड लिक्विड एंड मेजर। अगर आप कोशिश करते हो नीचे जाके लिक्विड के अंदर, आप नहीं जाओगे, मतलब डिवाइस लगाओगे। यू सी देयर इज अ फेमस कोट, फिजिक्स में एक बहुत फेमस कोट है, द सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड राइट व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट। मतलब हम जो मेजरमेंट लेते हैं ना वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जब आपने मेजर करना स्टार्ट किया आपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। फिर आपने अगर इंस्ट्रूमेंट डाल दिया इसके अंदर, सरफेस डिस्टर्ब हो गया, खत्म बात। कौन सा सरफेस टेंशन? तुमने सरफेस को डिस्टर्ब कर दिया, राइट। तो दैट इज द प्रॉब्लम, यू कैन नॉट गो इनसाइड। ओके,
तो फिर क्या करेंगे, लेट अस बी लिटिल स्मार्ट, हम बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, अंदर का नहीं साइड वाइज तो है, साइड वाइज भी कोहेसिव है, तो टेंजेंशियल फोर्सेस देख लेंगे। तो नाउ यू हैव टू राइट दिस डाउन इन अ प्रॉपर वे। तो क्या बोलना है आपको पता है, व्हाट डू यू नो, एज सीन अर्लियर द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड behaves like a stretched elastic membrane and is under continuous constant tension, right? As seen earlier, the free surface of liquid, the free surface of liquid is under constant टेंशन, ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस भी होता है बट ठीक है, कांस्टेंट टेंशन किसकी वजह से है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस, ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम फ्री सरफेस पे एक लाइन इमेजिन कर लेंगे और लाइन का लेंथ कितना है, एल। तो इमेजिन, ये इमेजिनरी लाइन है, नहीं तो बोलोगे घर पे जाके लाइन तो दिख नहीं रहा, दिस इज इमेजिनरी, तो दिख नहीं रहा, तो फिर इमेजिन करो, इमेजिन a line PQ, imagine a line PQ on the free surface of liquid, free surface of liquid as shown in figure, as shown in figure. Now what you know, we know that, what do we know, we know that all the molecules on this imaginary line are experiencing tangential forces. मैंने डाउनवर्ड फोर्स मेंशन नहीं किया क्योंकि मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाने के लिए हम लोग डाउनवर्ड फोर्सेस की बात ही नहीं करते, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टेंजेंशियल साइड वाइज स्ट्रेचिंग, राइट। तो we have imagined the line PQ on the surface, free surface of liquid as shown in figure, then all the molecules on this, अच्छा इसका लेंथ पता है क्या, इमेजिन अ लाइन PQ, अच्छा ऑफ लेंथ L, मुझे मेरा काम कम करना है इसलिए मैं इधर ही मेंशन कर देता हूँ, ऑफ लेंथ L, ओके। So all the molecules on this line experiences, क्या experience कर रहे हैं, experiences a tangential force, tangential कौन सा फोर्स, cohesive force, tangential cohesive force due to neighboring water मतलब liquid molecule, due to neighboring liquid molecules. Let F, you can say Ft, ठीक है, let F be the total tangential force on this line, मतलब on the molecules of this line, एक ही बात है, तो पूरे लाइन पे टोटल फोर्स कितना, F, right? Then this force per unit length, this tangential force per unit length मतलब पर मीटर में कितना फोर्स, इन शॉर्ट हो सकता है टोटल लेंथ है 10 मीटर, इतना तो लोगे नहीं, 10 मीटर मतलब 30 फीट, राइट, मे बी इट इज लेट अस से 1 मीटर, और टोटल फोर्स मान लो 1 मीटर बोलूंगा तो फिर मैं पर यूनिट लेंथ डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, दैट इज वाई 5 मीटर मान लो, 5 मीटर लेंथ, टोटल फोर्स इज 50 न्यूटन, व्हाट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, 10, 5 मीटर फोर्स 50 न्यूटन, तो 1 मीटर में कितना, 5, तो उस 5 न्यूटन पर मीटर को बोलते हो, उस 5 न्यूटन पर मीटर को बोलते हो सरफेस टेंशन। आपका टेंशन बढ़ेगा आज, गुड, ओके। सो दिस टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ
is defined as surface tension. Is defined as surface tension. तो एक ऑफिशियल डेफिनेशन लिख देना. Thus, surface tension can be defined as tangential force acting per unit length on an imaginary line on the free surface of liquid. Thus, surface tension can be defined as tangential force per unit length किस पे एक्ट कर रहा है? acting on an imaginary line. ये imaginary line कहाँ ड्रॉ किया? Drawn, imaginary line है, imaginary line drawn at the free surface of liquid. And therefore by definition tension is F upon L. So SI unit is Newton per meter. Meter square नहीं, Newton per meter. So SI unit is Newton per meter. And dimensionally, surface tension is dimensions of force upon dimensions of length, which is M1 L1 T minus 2 upon L1. L1 cancel. So M1 minus 2. Right. These are the dimensions of surface tension. अब एक important point याद रखना. This is really important. क्योंकि surface tension के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे अदरवाइज. हमने यहाँ पे लिखा F upon L, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे एक ही फ्री सरफेस था. जब आप एक ग्लास में पानी को भरते हो तो उस पानी का लोअर सरफेस फ्री नहीं होता, क्योंकि लोअर सरफेस के नीचे वाटर है. फ्री सरफेस एक ही है. कौन सा? ऊपर का. करेक्ट? इमेजिन मेरे पास एक मेटालिक वायर है. प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल. एज आई टोल्ड यू, आप कभी जतरा में गए होंगे, मैं भी कभी गया था, आप भी गए होंगे. एक टाइम था जब मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसको मैं सोप बबल में, सोप सॉल्यूशन में डिप करूं. देन आई टेक इट आउट एंड ब्लो इट एंड आई सी बबल्स. तो ऐसे केसेस में रिमेंबर व्हेन यू डिप दिस इनटू सोप सॉल्यूशन एंड टेक इट आउट, तो ऐसे केसेस में दो फ्री सरफेस होती है, एक फ्रंट साइड का, एक बैक साइड का. तो ऐसे केसेस में चेंज ये आता है कि यहाँ पे टेंशन इज टेकन टू बी 2 times, राइट? क्योंकि टेंशन फ्रंट सरफेस पे भी है, बैक सरफेस पे भी है. तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा आएगा 2. तो ये हम बाद में सॉल्व करते वक्त, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त देखेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन. तो इज दिस क्लियर? हमने क्या किया? हमने एक फ्री सरफेस इमेजिन किया, उस पे एक लाइन इमेजिन की, उस लाइन पे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उस पे लग रहा था साइडवाइज, मतलब टेंजेंशियल फोर्स. वो टोटल टेंजेंशियल फोर्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया और उसको बोल दिया सरफेस टेंशन. गुड. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज सरफेस एनर्जी, एंड दैट इज रियली अगेन इंटरेस्टिंग. कॉन्सेप्ट समझ लो. कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी गुड, और इसको समझने के 2 तरीके हैं. मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं. बोथ आर इक्वली फाइन. तो ऐसा है, सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, दे आर एक्सपीरियंसिंग नेट डाउनवर्ड फोर्स. इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स एट सम पॉइंट दे विल गो डाउन, राइट? ये पहला अप्रोच है. 2 अप्रोच है समझने के. मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं. इन शॉर्ट, जब ये मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे तो
इनकी जो प्लेस थी वो हो गई एम्प्टी, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे क्योंकि सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ऑल ऑफ देम आर एक्सपीरियंसिंग नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, सो दे विल बी पुल्ड डाउन। तो यहाँ पे तो पूरा खाली हो जाएगा, करेक्ट, सिस्टम विल बी एम्प्टी। तो क्या होगा, सिस्टम मतलब यहाँ पे लेयर, फिल्म विल बी एम्प्टी। तो क्या होता है, नीचे से कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं टू फिल दिस एम्प्टी प्लेसेस। अब नीचे से ऊपर मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी नथिंग कैन गो ऑन इट्स ओन, वर्क हैज टू बी डन। ये जो वर्क डन हुआ किसके लिए, टू टेक दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम डीप इनसाइड टू द सरफेस। Work is a form of energy which can neither be created। तो ऑब्वियस क्वेश्चन है कहाँ गया, स्टोर्ड, कहाँ स्टोर हुआ, सरफेस में, यहाँ पे स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी, राइट। तो याद रखना, हमेशा याद रखना, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, एनी टॉपिक, उसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी ये वर्ड यूज हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम वर्क डन। यहां पे वर्क हुआ टू टेक द मॉलिक्यूल फ्रॉम डीप इनसाइड अगेंस्ट ग्रेविटी इनसाइड द सरफेस लेयर, इनसाइड द सरफेस फिल्म। आपने डीप इनसाइड से मॉलिक्यूल को कहां ले गया, सरफेस फिल्म में, अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वर्क डन हुआ। वर्क कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब दिस एनर्जी हैज टू बी स्टोर्ड समवेयर। अब मॉलिक्यूल ऊपर गया था, वर्क डन किस पे हुआ, मॉलिक्यूल के ऊपर हुआ, तो एनर्जी किसके पास है, मॉलिक्यूल के पास है। वो मॉलिक्यूल जाके कहां पे सेटल हो गया, सरफेस में, तो एनर्जी कहां होगा, सरफेस में, इसे क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच सिमिलर है, सिर्फ जो नोट्स में दिया है बोलने का तरीका अलग है। व्हाट यू कैन से, वी नो दैट, आई टोल्ड यू, वी नो दैट फॉर अ मॉलिक्यूल व्हिच इज डीप इनसाइड, it is experiencing maximum force, it is experiencing maximum cohesive force। सिर्फ इतना ही है कि ये cohesive force resultant force जीरो है, मतलब net force is जीरो। इसका मतलब ये स्टेबल था। अब वेरी ऑब्वियस, कोई भी चीज स्टेबल हो उसको अनस्टेबल करके ऊपर लेके जाना ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अनस्टेबल चीज को मूव करना ये ज्यादा इजी होता है, वेयरएज जो ऑलरेडी स्टेबल है, तो ऑलरेडी स्टेबल है उसको आप ऊपर लेके जाओगे, इट रिक्वायर्स मोर वर्क। मतलब द मॉलिक्यूल्स विच आर डीप इनसाइड are experiencing maximum cohesive force, but this cohesive force is balanced, मतलब no net force, hence more work is to be done to take these molecules from deep inside to the surface, right, compared to बाकी के जो भी मॉलिक्यूल होंगे उनको कम वर्क लगेगा। मतलब ये जो बाहर के मॉलिक्यूल्स है ना सरफेस फिल्म के, ये भी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, राइट। तो नीचे आ रहे हैं और आप डीप इनसाइड से ऊपर लेके जा रहे हो, तो जो जितना नीचे से ऊपर ले जाओगे उतना ज्यादा वर्क होगा, एंड दिस वर्क is stored in the form of potential energy which is again called as surface energy। तो surface energy और surface energy का surface tension के साथ रिलेशन मैथमेटिकल इक्वेशन, क्योंकि surface energy एनर्जी है, surface tension एनर्जी नहीं है। surface tension क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ ये एनर्जी नहीं होता है। तो हमको एक इक्वेशन डिराइव करना है बिटवीन surface tension and surface energy। So in the next session, we will revise surface energy and also derive equation for surface tension and surface energy.